الحرم 1 ملین مربع میٹر جگہ جس میں 2 ملین افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، جس جگہ سالانہ 20 ملین افراد زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو حرم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ مفسرین کہتے ہیں کہ طہارت سے مراد صرف معنوی طہارت نہیں بلکہ مادی طہارت بھی مراد ہے، لہٰذا ہم حرم کی صفائی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسی جگہ کو آپ کیسے صاف کر پائیں گے جہاں 24 گھنٹے کئی ملین افراد کا رش لگا رہتا ہو؟ دنیا میں رش والی جگہوں کو اس وقت صاف کیا جاتا ہے جب وہ خالی ہو، جبکہ کعبہ تو لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، صفائی کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر حرم کی صفائی کرنے کا مجھے اعزاز ملا۔ یہاں سے شروع کریں، ابھی ہم صفائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، چلو سب مل کر جلدی کرو جلدی۔ اگر ہم صفائی کی تفصیل میں جائیں تو ہر کام بڑے اچھے انداز اور بڑی باریکی اور خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ چلو تیزی سے جلدی کرو جلدی۔ دیکھا کیسا بہترین طریقہ ہے؟ ذرا الگ الگ رہنا۔ تھوڑا سا کام کر کے میں تو تھک چکا ہوں۔ بڑی مشقت کا کام ہے کیونکہ انتہائی کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وائپر چلانے والوں کے ساتھ مشینیں بھی کام کر رہی ہیں۔ بھائی، آپ کی بڑی پریکٹس ہے، اس لیے آپ تھکے ہی نہیں، جبکہ میں تو تھک چکا ہوں۔ لو جی، کام مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا، بہت شکریہ۔ دیکھا، ہم نے مطاف صاف کر دیا ہے، حالانکہ ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور سلامتی سے کام مکمل کر لیا۔ حرم کا سارا صحن آدھے گھنٹے میں صاف کر لیا جاتا ہے، اور دن رات میں 4 مرتبہ ایسے ہی بڑے اہتمام سے صفائی کی جاتی ہے۔ دھلائی والے پانی میں خوشبو اور عرق گلاب ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی میں ایسے کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں جو کہ جلد یا آنکھوں کو نقصان دہ نہ ہو۔ صفائی کے بعد زمین سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ حرم کا ہر کونا صاف کیا جاتا ہے۔ صفائی کے لیے 1800 افراد کام کرتے ہیں۔ صحن کی صفائی کے لیے 40 آٹومیٹک مشینیں، 60 دیگر برقی آلات ہیں۔ حرم کے اندر اور باہر 2000 کوڑا دان ہیں۔ فرش، دروازے، دیواریں، مینار، چھتیں، ہر جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ ایک بڑی اہم جگہ بھی صاف کی جاتی ہے، اور وہ ہے حرم کے قالین۔ جدید توسیع سمیت حرم میں 40,000 قالین بچھتے ہیں۔ اگر ان کو آپس میں ملا کے بچھایا جائے تو مکہ سے جدہ تک 79 کلومیٹر کی مسافت سے بڑھ جائیں۔ ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ گرد و غبار، داغ دھبے صاف کرنے کا مرحلہ۔ دیکھا، قالین ایسے جھاڑے جاتے ہیں۔ یہ دھونے کا مرحلہ ہے۔ پہلے پانی، پھر صابن سے قالین دھوئے جاتے ہیں، آخر میں پھر پانی سے دھوئے جاتے ہیں، یعنی قالین کو خشک کیا جاتا ہے۔ یہ مشین صرف قالین خشک کرتی ہے، آخری قطرہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ مکمل خشک ہو گیا۔
یہ ایک مرتبہ خشک ہو چکا ہے، ذرا کھولیے اسے، یہ بٹن سے کھلتا ہے۔ 5واں مرحلہ یہ ہے کہ قالین کو کھلی ہوا میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ مکمل خشک ہو جائے، پھر سٹور کر دیا جاتا ہے۔ سٹور کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سٹوریج کا مرحلہ، اس میں 15,000 قالین سٹور ہو سکتے ہیں۔ پلاسٹک میں پیک یہ قالین ضرورت کے تحت حرم میں بچھائے جاتے ہیں۔ قالینوں کی دھلائی کے بعد خوشبو چھڑکاؤ کا مرحلہ آتا ہے۔ تمام قالینوں پر عرق گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ خوشبو اور خوشبو کا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو خوشبو سے روحانی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں اور قالینوں سے بو آ رہی ہو تو آپ سجدہ لمبا کریں گے نہیں۔ یہ صفائی اور خوشبو اسی لیے ہے کہ زائر خوشبو سے اپنے مقصد میں لگ جائے، یہاں تک کہ فضا بھی بخور سے مہکائی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کو عطر لگایا جاتا ہے، حجر اسود کو معطر کیا جاتا ہے، ہر جگہ خوشبوئیں پھیلائی جاتی ہیں۔ حرم کی سہولیات میں سے ایک سہولت واش رومز ہیں جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ توسیع سمیت حرم کے گرد 13,000 واش رومز ہیں، ان کو روزانہ 4 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ تمام واش رومز تہہ خانے میں ہیں۔ ہر جگہ پنکھے، رہنمائی بورڈ، مچھر مار مشینیں موجود ہیں۔ یہ آلہ ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کرتا ہے، اس سے بو کا سبب بننے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے۔ زمزم مدتوں پرانا کنواں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ملین لوگوں کو یہ پانی کیسے مہیا کیا جاتا ہے۔ حرم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بآسانی زمزم دستیاب نہ ہو۔ پورے حرم میں 25,000 کولر ہیں۔ یہ کولر روزانہ صاف کیے اور بھرے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ممکن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی پلانے والا نظام ہو۔ روزانہ بے شمار لوگ پانی پیتے ہیں۔ ہر روز پانی کا معیار چیک کرنے کے لیے 100 سیمپل بھر کے جدید آلات سے لیس لیبارٹری میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کوئی خرابی تو نہیں۔ طواف کرنے والوں کی خدمت میں بھی زمزم پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے خود اس میں حصہ لیا، اس کے لیے خاص ورکر ہیں۔ دیکھا، ایسے بیگ پہن کر پانی پلایا جاتا ہے۔ خوش آمدید، آپ کا نام؟ جمیل، اللہ تیری زندگی خوبصورت کر دے۔ بابرکت پانی ہے۔ خوش آمدید، بابرکت پانی ہے۔ خوش آمدید، ماشاءاللہ، اور چاہیے یا بس؟ دعا کریں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ بابرکت پانی ہے، دعا کریں، دعا۔ کیا نام ہے؟ پاکستانی؟ بنگلہ دیشی؟ بنگلہ دیش ماشاءاللہ تعداد کے لحاظ سے چوتھا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ السلام علیکم، کیف الحال؟ الحمدللہ۔ لاہور ماشاءاللہ، تحیات۔ یہ حرم کی خوبصورتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہیں۔ یہاں زمزم کا کنواں ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ سے 21 میٹر دور ہے۔ اس کی گہرائی 30 میٹر۔ ایک چشمہ صفا مروہ سے پھوٹتا ہے اور ایک چشمہ کعبہ سے۔ زائرین کی ضرورت کے لیے زمزم کنویں سے 4 کلومیٹر زیر زمین شاہ عبداللہ کمپلیکس تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کمپلیکس ٹوٹل آٹومیٹک ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، پلاسٹک کی یہ بوتل تیار کی جاتی ہے۔ اس چھوٹی بوتل سے یہ گیلن تیار کی گئی، کچھ 10 لیٹر اور کچھ 5 لیٹر ہیں۔ ہر سیکنڈ میں 1 گیلن تیار ہوتی ہے۔ یہاں سٹیکر لگائے جاتے ہیں، سب کام آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ یہاں گیلن کو دھویا جاتا ہے۔ یہاں پانی بھرنے کے بعد سیل کیا جاتا ہے۔
गैलनों को प्लास्टिक कवर से ढांप कर यहाँ स्टोर किया जाता है। इसमें कितने गैलन स्टोर किए जाते हैं? 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन। यहाँ 17 लाख गैलन स्टोर किए जाते हैं 10 लीटर वाले। तरीका हुसूल जमजम। इससे पहले ऐसा कोई निजाम नहीं था। फैक्ट्री बनने से पहले लोग हुजाज को महंगे दामों जमजम से भरे गैलन फरोख्त करते थे। यकीन न होता कि इसमें जमजम का पानी है या कोई और। ये सारा निजाम इसलिए बनाया ताकि हुजाज आसानी से असल जमजम हासिल कर सके। इसी पर बस नहीं बल्कि इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि बेशतर मालूमात ऐसी हैं कि इससे पहले मैं भी नहीं जानता था। हरम में एक और सहूलत भी है, वो है कुरान क्लास। दुनिया के किसी कोने में बैठकर इस उस्ताद से हर किरात में कुरान पढ़ सकते हैं। ये सहूलत 24 घंटे दस्तयाब है। यहाँ के तमाम उस्ताद किरात अशरा में पढ़ा सकते हैं, यानी किरात, हफ्स, वर्श, हमजा वगैरह। 180 ममालिक के लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। 3 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए। देखो अब्दुल रहमान पढ़ रहा है स्वीडन में अपने घर में बैठ के। الله أكبر براجع مع القاعدة الإبراهيمية. جيد ما شاء الله جميل. ये है कुरान क्लास। ये छोटा काम नहीं। अरब दुनिया में तो हर जगह इमाम, मस्जिद, मुदर्रिस कुरान पढ़ाने के लिए मिल जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ कुरान पढ़ाने वाला नहीं, तो हरम के उस्ताद से पढ़ सकते हैं। हमने एक नए अंदाज से काम किया। मुख्तलिफ हुजाज से पूछा कि आप गिलाफे काबा बनता देखना चाहते हैं? क्या आप गिलाफे काबा बनता देखना चाहते हैं? क्या ख्याल है? काश ऐसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? बिल्कुल। मुझे खुशी हुई। ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। किसी को दे दोगे? नहीं, बल्कि व्हील चेयर के दफ्तर जमा करवाऊंगा। अच्छा, एक दोस्त ने पैसे दिए थे। यानी आप दोस्त की तरफ से खरीद कर हरम में रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि खरीद कर हरम में दे दूं। बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत दे। आमीन। आइंदा साल के लिए गिलाफे काबा बनता देखना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता। गिलाफे काबा की शाह अब्दुल अजीज फैक्ट्री, यहाँ पूरा साल गिलाफे काबा तैयार किया जाता है। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। इस सुई को ऊपर खींचो। यहां से नीचे करो। माशाअल्लाह। दाएं खींचो, मजबूती से खींचो। दूसरे हाथ को नीचे रखो, खींचो। बिस्मिल्लाह। कितनी मुद्दत में आदमी सीख जाता है? 3 या 6 माह में हो सकता है, लेकिन यहाँ 9 क्या माह की आदमी तरबियत 9 माह है। में मुकम्मल जी, सीख 9 जाता माह, है? लेकिन वायदा से फारग होकर यहाँ अमली काम है। भाई अब्दुल जलील मेहमानों को इधर भेज रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो मैंने कुछ महसूस किया कि फहरिस्त में एक और हाजी का इजाफा होना चाहिए। ये अब्दुल जलील हिंदी हैं। अब्दुल्ला, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह आपको कुशादगी दे। हमारे लिए भी दुआ करना। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई।
हरम की फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी हिफाजती लॉकर्स हैं। यहाँ ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ साइज में 2000 से ज्यादा लॉकर्स हैं। ये ऑटोमेटिक हैं, इंग्लिश और अरबी जबान में हैं। दबाएं, लॉकर खुल गया। लॉकर में चार्जिंग और USB की फैसिलिटीज हैं। यहाँ से पर्ची या कार्ड आएगा जिस पर मालूमात दर्ज हैं। इस पर्ची को स्कैन करें तो लॉकर खुल जाएगा। सामान लो और जाओ। मौसम गर्मा में मक्का का दर्जा हरारत 40 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे सख्त मौसम में ज़ायर इबादत करते वक्त पसीने से शराबूर हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ठंडा एनवायरनमेंट है। आइए देखते हैं ये ठंडक का अहम निजाम कैसा है। यहाँ ज़ेरे जमीन ये निजाम है, इसमें मुख्तलिफ चिलर हैं। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई आए और थोड़ी सी मदद करे बस। ये पत्थर उठा के आगे कर दे। वो आए वो। ओके, बिस्मिल्लाह। बस आप दुआ करें। आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। वो पत्थर उठाओ, बस यहां रख दो। चलो, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी। यहां वो सारा निजाम है। सिर्फ हरम के लिए सैकड़ों चिलर हैं। इससे नीचे ठंडे पानी के पाइप हैं जिनसे पूरा हरम ठंडा रहता है ताकि ज़ायर अपने मकसद पर रहे। हरम में हर आने वाला हैरान है कि ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसका राज ये है कि ये खास पत्थर जो यूनान से दरामद किया जाता है, इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी और रोशनी को मुनक्कस करता है। ये पत्थर पूरे हरम में ऐसी समत पर है ताकि आदमी का रुख काबे की तरफ रहे, यानी जहां काबा नजर ना भी आए तो पता चल जाए कि इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। देखो इंजीनियर्स ने कैसे बनाया है, ये आसान नहीं। हरम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्से की मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स मौजूद हैं। जहां कोई पत्थर खराब हो जाए या टूट जाए, इसको मुरम्मत किया जाता है। हरम में एक और बड़ी आला फैसिलिटी मैसर है, वो है अल मकसद एप्लीकेशन। इस्तेमाल का तरीका यूं है, आप हरम में जहां भी जाना चाहें, एप्लीकेशन खोलें, इब्तिदा पर प्रेस करें, इस नाम पर प्रेस करें। मसलन आपको गूंगे बहरों के ऑफिस जाना चाहते हैं या व्हील चेयर ऑफिस या किसी गेट पर जाना चाहते हैं तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। सानियन, इसमें मुख्तलिफ जुबानों का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा गेट नंबर 29। ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट चलती है। 29 नंबर गेट 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये हुजाज की आसानी के लिए है ताकि इधर उधर घूम फिर के वक्त जाया ना हो। लो, हम मतलूबा गेट पर पहुंच गए। एक और बड़ी उम्दा फैसिलिटी है। साउंड सिस्टम। हरम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सौती निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी 4 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है ताकि जब अजान हो या जमात तो 1 सेकंड के लिए भी हरम की आवाज बंद ना हो। इमाम की आवाज जितनी भी अच्छी हो, अगर स्पीकर खराब हो या शोर कर रहा हो तो आदमी नमाज में बेचैन हो जाता है। हरम में 6000 स्पीकर्स हैं, 4 साउंड सिस्टम हैं, 50 अफराद इसको चलाते हैं। दुनिया में 80% मुसलमान गैर अरबी हैं। 4 बड़े इस्लामी ममालिक गैर अरबी हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जबकि काबा सब मुसलमानों का है। लिहाजा इनकी फैसिलिटी के लिए दुनिया की 65 मुख्तलिफ ज़बानों में कुरान पाक का तर्जुमा हरम में दस्तयाब है। खुतबा जुमा की अदायगी के लिए हम हरम आए। खुतबे का मौजू बड़ा अहम था। जरा तसव्वुर करें, अगर ज़ायरीन हरम को मालूम ही नहीं इमाम क्या कह रहा है
तो इनके सुनने का क्या फायदा। लिहाजा हुजाज के लिए 5 मुख्तलिफ जुबानों में बराह रास्त तर्जुमे की फैसिलिटी मौजूद है। हैंड फ्री लगाएं, साइट खोलें और अपनी जबान में खुतबा सुनें। बल्कि गूंगे बहरे लोगों के लिए खुतबे का तर्जुमा करने वाले अफराद मौजूद हैं। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। मुसलमान हर मोहताज की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाबीना के मुतल्लिक मुतनब्बे फरमाया। वक़ालू समिअना व अताअना। हरम में ब्रेल जबान में भी कुरान मौजूद है ताकि नाबीना अफराद हरम में तिलावत कर सकें। मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। इनके अलावा और कई फैसिलिटीज हैं, मसलन आम व्हील चेयर्स 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर्स फ्री दस्तयाब हैं। बरकी व्हील चेयर्स 400 बरकी व्हील चेयर्स खास जरूरतमंदों के लिए दस्तयाब हैं। मुस्तकबिल में 2 या 3 अफराद के लिए एक खुदकार व्हील चेयर आने वाली है। इंशाअल्लाह ये जल्द आ जाएगी। खुदकार व्हील चेयर 3 अफराद के लिए है ताकि एक आदमी 3 अफराद को तवाफ और सही करा सके। ये बरकी है, बड़ी आसानी से चलती है। इंशाअल्लाह ये जल्द आने वाली है। हरम में मजीद बेहतरी जारी है। स्काउट खुशामदीद। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ कराएं। हम मक्का के नौजवान हैं। मक्का के नौजवान माजूरों बूढ़ों की फ्री खिदमत करते हैं। बखुदा ये बड़ा ही उम्दा काम है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी न था। ये तवाफ और सफा मरवा कराते हैं। कितने घंटे काम करते हो? 4 शिफ्टें हैं। एक शिफ्ट 6 घंटे की है। 24 घंटे? 24 घंटे सारा साल काम करते हैं। सुबह 6 बजे आगाज होता है। माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे। आमीन अल्लाह बरकत दे। आमीन। अम्मा मेरे लिए दुआ करें। मालूम नहीं मलेशिया या इंडोनेशिया से हैं। हुजाज हजारों मीलों से आते हैं। इनके दिलों में यहाँ जो लिल्लाहियत होती है ये कहीं और नहीं हो सकती। हो सकता है वो हाजी पहली मर्तबा आया हो या इसका आना आखिरी मर्तबा हो। शायद जिंदगी में इसको दोबारा मौका न मिले। जब कोई इनकी खिदमत करता है तो इनके दिलों में घर कर जाता है। फिर वो हाजी सारी जिंदगी दुआ गो रहते हैं। अल्लाह मक्का के जवानों का जज्बा कबूल फरमाए। इसी से मिलता जुलता और रिफाई काम वो है इफ्तारी। कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान हो। अंदरूनी हरम में 5 लाख गुठली निकली खजूर और 5 लाख हरम से बाहर गुठली निकली खजूर इफ्तारी के लिए तकसीम की जाती है। बेशुमार अफराद इस काम को फ्री से अंजाम देते हैं ताकि रोजेदार को हरम में इफ्तारी कराएं। काम करने वाले इसको अपने लिए बाइस इज्जत समझते हैं। बड़ा अहम सवाल, क्या इन तमाम कामों में कभी गलती नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम पूरा मुकम्मल नहीं होता क्योंकि कमाल तो अल्लाह की सिफ्त है। ये इंसानी काम कभी इनफरादी गलती हो सकती है, कभी गैर मुतवक्को हालात होते हैं, लेकिन कोई मुनसिफ इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि मक्का में हमेशा बेहतर से बेहतरीन काम जो इस साल है आइंदा इससे बेहतर होगा। ज़ईफुर रहमान की खिदमत का प्रोजेक्ट 12 विजनरी प्रोजेक्ट में से एक है। सैकड़ों मुआवन इदारे कोशा हैं ताकि आने वाले सालों में और बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। यही प्रोजेक्ट 2030 के विजन का बुनियादी रुकन है। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आफियत से नवाजे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में कोशिश ये की गई है कि हर बात हरम के हवाले से सही मौजूद हो। गलती इंसानी खता है क्योंकि कमाल सिर्फ अल्लाह की जात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।